अस्सलाम वालेकुम. I hope everyone is doing well. सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. The pandemic is still not gone, so I hope आप सब precautionary measures ले रहे होंगे. सब अपना कम से कम contact रख रहे होंगे with the world and with the other people as well. We are back with another episode of Speak, and I welcome you all. So today we are talking about a very interesting topic that is very close to my heart, and it is that be stronger than your excuse. The reason for keeping this topic was that हम लोग सब देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में भी देखे होते हैं कि हम छोटे छोटे काम करने के लिए which will add up to our success हम अपने आप को कोई ना कोई excuse दे रहे होते हैं. इतनी छोटी सी बात के लिए भी हम अपने आप को excuse देते हैं. जैसे this morning I gave myself excuse for not taking the 8 a.m. classes कि मेरा internet speed slow है, so I don't think so I will be able to cope up, and I gave myself the excuse कि okay, this is okay, मैं कल ले लूंगी, बाद में वीडियो देख लूंगी and all that. So similarly हम सब अपनी सक्सेस के पाथ पर बहुत सी चीजों में बहुत से एक्सक्यूजेस देते हैं अपने आप को. So today we decided to talk on that you are stronger than your success. Your success requires you to be stronger than your excuse. So today I have with myself a very good friend of mine who happens to be a colleague as well. और हमने अब्दुल्ला को ऑनलाइन लिया है just because of the reason कि अब्दुल्ला had an stammering issue, and I hope most of you all know that what is stammering and stuttering. बहुत से लोगों को एक common ये issue होता है. लेकिन Abdullah didn't let that come in the way of his success. Abdullah is currently pursuing his bachelor in business administration from Zabis. He is also my co-BD executive at DS Group of Companies. He is the president at the Debating Society in Zabis and also secretary services at the Student Council in Zabis. So without any delay, I'll have Abdullah on the line, and today we'll talk about how he didn't let stammering come in his way of success, and how you should make no excuse for your success. So I'll have Abdullah on the line without any delay. Hello Abdullah, Hello how are everyone. you? Hi Aman, I'm good. How are you? I am great. So we are back together after quite a pause. Yes, it's been long. So Abdullah, I was just telling the people that today we have kept the topic which is be stronger than your excuse. और मैं बता रही थी कि किस तरह हम छोटी छोटी बातों पे अपने आप को different excuse देते हैं. Then I told people about the issue that is stammering and stuttering, जो कि बहुत से लोगों को होता है, and it's a common thing. So I introduced you as well to the people watching. So I like you to tell people कि what is basically this issue of stammering and stuttering, और ये होता किस वजह से है? Okay, stammering is a speech disorder. इसमें होता है ये कि मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली, बीच में क्या होगा कि कुछ वर्ड्स होंगे या कोई सिलेबल्स होंगे जो या कोई सेंटेंस होगा, साउंड होगा जिसमें आई वुड स्ट्रक. ठीक है, ये है बेसिक स्टैमरिंग. इसके साथ साथ अगर और क्या होता है कि आप वर्ड्स को प्रोलॉन्ग कर देते हो. ठीक है, एंड दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली. इसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका इसके ऊपर है कंट्रोल. देयर इज नो फिक्स रीजन फॉर इट. ये खुद ही होता है. एंड एज फार एज आई हैव रिसर्च, मैं इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च की है कि इसका कोई आउटकम निकले, बट नहीं निकला. इन शॉर्ट वर्ड्स इट्स वायरिंग इश्यूज जिसे कहते हैं. आम अल्फाज में बोलेंगे कि आपके ब्रेन के अंदर एक वायरिंग इश्यू है कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जब वो अपनी स्पीच डेवलपमेंट उसके फेज में आ रहा होता है, तब उस वक्त कोई न्यूरल वायरिंग होती है जो कि आपस में उलझ जाती है. तो दैट इज द रीजन कि जब आपके मसल्स और आपके ब्रेन का कांटेक्ट बीच में डिस्टर्ब होता है, एंड दैट कॉजेज द स्टैमरिंग. Okay, that's quite logical. So Abdullah, is जैसे कि I think आपने mention भी अभी किया, so is it an issue which is by birth or it develops slowly? It can be by birth and it develops slowly as well. इसका बेसिकली इतनी रिसर्च इसके ऊपर हुई भी है, एंड लेकिन इसका कोई इतना आउटकम निकला नहीं. बेसिकली स्टैमरिंग में जब बच्चा ग्रो हो रहा होता है उस वक्त ये इशू आ भी जाता है, एंड कुछ लोगों को ड्यू टू सम रीजंस के कोई अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए, वो बाद में भी when they go to the adult life, तो उस वक्त भी वो लोग फेस करते हैं.
सो इन दी एंड ये इट्स लाइक अ लक वाली बात है कि आपको इशू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. It's देयर इज नो something फिक्स very थिंग. natural. यस इट इज. So, Abdullah, do you have this issue since your birth, or did it develop later on? I have this since birth, as far as I remember. Okay. So I was just telling the people as well, you are the president of debating society. So it's a big thing, Yes. and I know how the society systems in the college work, and surely the top-notch students reach up to that point. So you surely must be very good at the debates and all. So that's why you're the president of debating society. So this shows how you have not let this come in the way. So I like you to ask, how did you improve in this? How did you not let this come in your way, and how did you cooperate with that? It's a very इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली. मैंने जिंदगी में डिबेट्स नहीं की थी, ठीक है. शौक मुझे बहुत था. आई वाज इन ग्रेड 4-5. उसमें आते थे क्लास में, टीचर पूछते थे बच्चों के भाई आगे एक कंपटीशन आ रहे हो, who would like to part. तो मेरा हाथ रेज होता था. आई वाज द वन कि मुझे जाना है. बट मेरे सिर्फ इस इशू की वजह से teachers obviously used to ignore me. ठीक है, चांस नहीं मिला है. एंड later in life फिर मैंने ये अपना शौक फिर छोड़ दिया. I didn't look back. But when I started my bachelor at Zabis, तो मैं जब Zabis में एंटर हुआ, मैं एक चीज सोची, मेरा अब ये एक मौका है अपनी नई आइडेंटिटी बनाने का. I am entering into my new life. Nobody knows me here, so why not do something जो आज तक नहीं किया. So then I joined the debating society as a member. एक साल मैं उसका मेंबर रहा, ट्रेनिंग सेशन लेता रहा, 2-3 कंपटीशन में पार्ट भी लिया. एंड आई डिडंट विन, बट ये था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई लर्नड अ लॉट. मेरा स्टेज फ्राइटनिंग का जो फेज होता है वो भी बिल्कुल एक्सक्यूज हो गया था लाइफ से कि यार अब तो हो ही नहीं रहा. मेरी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हुई थी. बीबीए में तो होती ही से प्रेजेंटेशन था. अच्छा, तो एक साल बाद देयर वाज opposition opening up for the general secretary. तो I applied for it. मेरा इंटरव्यू हुआ and I got selected. Great. उसी दौरान 3 to 4 months बाद the chairperson she resigned. तो obviously I was the second हाईएस्ट रैंक पे था उस वक्त. ये मेरी पोजीशन थी. तो ऑब्वियसली इट वाज लाइक आपको ही प्रमोट किया जाएगा. तो इट वाज यू नो ब्लेसिंग के ऑटोमेटिकली मैं एज अ मेंबर और एक साल बाद खुद ही चेयरपर्सन बन गया. एंड उसके साथ फिर आई ऑर्गेनाइज फ्यू इवेंट्स एट ज़ैबिस, और ट्रेनिंग सेशन में लेता भी था और देता भी था. एंड मेरे अंडर पूरी टीम थी जो कि यूज्ड टू वर्क ऑन इट. एंड देन केम कोविड. तो मैंने उस पूरी ट्रेनिंग सेशंस को आई शिफ्टेड देम ऑनलाइन. तो वो वीकली बेसिस पे एट स्टार्ट ऑफ द मार्च 2020 हम लोग ये ट्रेनिंग सेशन वीकली होते थे. Great. और अराउंड 2 to 3 months चलते रहे. This is very impressive. Plus यहाँ पे आपने दो बातें मेंशन की which really triggered the question, which was one कि आपने बताया कि आप छोटे होते स्कूल में आपको शौक था डिबेटिंग वगैरह का, लेकिन you were not being picked by teachers and all. तो एक स्कूल कल्चर में एक बहुत टॉक्सिक चीज है हमारे कल्चर में, that's bullying. तो कभी ऐसा हुआ है कि have you ever experienced bullying because of this reason? Yes, बिल्कुल. अमन, बेसिकली आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि जब आप किसी के अंदर वीकनेस देखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अगला बंदा है ही स्टार्ट्स बुलिंग. ठीक है, स्कूल में तो ये बहुत कॉमन है. मैं अभी भी कभी स्कूल अपने भाई को लेने जाऊं, कभी उनको आई यूज्ड टू फाइंड पीपल, वो बच्चे हैं वो अपने ही क्लास के जो वीक बच्चा है उसको तंग कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज वीकनेस. वो चाहे स्टैमरिंग हो, वो चाहे हाउ उसकी हाइट छोटी हो, या और भी कोई इश्यूज हो.
तो bullying is very common, and yes, I did suffer from it. Okay. So obviously bullying is kind of a thing which is not very good for the mental health of a lot of people. आपकी self esteem पे भी बहुत issue पड़ता है. So अगर मैं कहूँ कि with what one thing helped you survive that phase, so what will that be? I would like मैं ये कहूँगा कि कांस्टेंट हसल थी कि अब ये चीज हो रही है, सो यू कैन नॉट स्टॉप इट. एक था बिलीफ कि यार एक दिन टाइम आएगा कि जब ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी, एंड इट केम. Great, great. So, Abdullah, your story is no doubt very impressive in terms of all that how you have overcome this condition. लेकिन एक एंड पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि नाउ सिंस हमारा सीख का भी मकसद ये होता है कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और जनरली भी हम इस बारे में बात करते रहते हैं कि बेसिकली सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, इट इज पुटिंग योरसेल्फ इन अदर्स शूज. तो आई थिंक जिस तरह अगर किसी को कोई इशू है तो वो दूसरों को साथ भी एम्पैथाइज करे और उनको भी मदद करे. जैसे एक फेज से आप गुजर के आ रहे होते हो, तो आप देखते हो कि समवन एल्स इज गोइंग थ्रू दैट एंड यू ओवरकेम समथिंग, और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो. So I'd like to ask you that have you ever tried or are you helping other people who have the same condition in not making it an issue for themselves? Yes, बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहती है कि whoever come up to me, कोई हेल्प चाहिए हो किसी तरह की भी, इरिस्पेक्टिव वो उनकी डिग्री से हो रिलेटेड या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आई ट्राई टू हेल्प देम इन एनी वे. एंड कोशिश ये रहती है कि अगले बंदे को ये फील ना हो कि यार मैं अलग हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो शायद लोग मुझे हेल्प नहीं करेंगे. ये आपके अंदर सोच आती है. जब मैं भी था पहले बचपन में, मेरे पे भी आती थी कि यार मुझसे कौन बात करेगा, या मेरा दोस्त कौन बनेगा, या मतलब मैं क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, इस तरह के ना क्वेश्चन आपके आपके माइंड में आते हैं. तो अगर इफ यू फाइंड अ पर्सन, जो कि मैंने एक टाइम तक मिस किया था कि मेरे पास नहीं था कोई कि मैं उससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, कि जिससे बात करते थे वो ये कहता था कि यार ठीक है, हो जाएगा ठीक, कोई मसला नहीं, अल्लाह की दी हुई चीज है, फोकस ऑन द ब्राइट साइड एंड ऑल दैट. ये जो कहानी ये सिर्फ बातों में अच्छी लगती है, बट इन रियलिटी जो आपके दिमाग के अंदर, जो आपके मेंटालिटी जो आपकी चल रही होती है, आप अक्सर जगहों पे मेंटल ब्रेकडाउन भी फेस करते हो. तो वो चीजें इन अल्फाजों से ठीक नहीं होती. वो जब तक आपको अंदर का सुकून नहीं मिलता ना, वो आई बिलीव के उस वक्त तक ना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील करते अपनी लाइफ के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब्दुल्ला, वेरी वेल डन. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आप हमारी, क्योंकि आपने देख रहे होंगे हमारी पहली भी एपिसोड, तो हम लोगों ने इसका नाम सीख इसलिए रखा है ताकि लोगों को कोई सीख मिले. तो एंड पे इफ आई आस्क यू कि अगर आप लोगों को कोई कोई एक चीज बताना चाहें व्हिच हेल्प यू, कोई एक सीख देना चाहें, तो व्हाट विल दैट बी? मेरी तरफ से यही बात होगी कि बिलीव इन योरसेल्फ. अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ फेज. आप चाहे वो मार्क्स के, आज मैंने तो जो फेस किया कि मेरे साथ जो इश्यू होते थे, या मेरे ग्रेड्स नहीं आते थे, या मैं स्कूल लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, तो मेरी भी यही थी कि इट्स जस्ट अ फेज, टाइम विल पास, एंड आप वो चीज करो जिससे आपको खुद खुशी मिलती है. ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आप अपनी लाइफ से खुश रहो, अल्लाह से को राजी करो, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, एंड आप एक सोसाइटी में एक अच्छी इमेज भी रख सकते हैं. वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अब्दुल्ला. थैंक यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस पर बात करने की जरूरत समझी. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स आवर प्लेजर ऑलवेज. So that was Abdullah, and we were talking about something which is very important and needs to be talked about. ऐसी जो छोटे छोटे conditions हैं, issues हैं, इनके बारे में बात करने की जरूरत है ताकि एक inclusive environment create किया जा सके. जिस तरह अब्दुल्ला ने भी बात की कि जिन बच्चों के साथ ये issue होता है, they sometimes think and they ponder on the fact कि अच्छा हम ऐसे क्यों हैं, या हमारे साथ हम different हैं, बहुत से
बच्चों को बुलिंग भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि ये एक्सक्यूज नहीं है for in the way of their success, and this is just a condition. I will not even call it an issue. This is a condition which is normal, and it's with a lot of people around the world. So what you need to do is, just like Abdullah said, believe in yourself and stop giving yourself excuses, and work on the right path of success, and that's the way to go. And यही आज के सेशन की सीख थी कि अपने आप पे यकीन रखें और अल्लाह पर यकीन रखें और मेहनत करें, and that's the way to success. So thank you so much for joining in, and we will be back with another episode of Seek very soon. Allah Hafiz.